we know that in the research of education and psychology, and especially the quantitative part, either we find some relationship among chosen variables or we find differences. So whenever we see the relationship, we have to find, we have to calculate certain statistics starting from R, that is the linear correlation, again partial correlation, again multiple correlation, and finally this regression prediction. Now we taking care of the previous lectures based on the calculation of correlation coefficient, rather linear correlation coefficient, multiple coefficient, partial correlation coefficient. We have written and we have learned how to test these hypotheses. You can recall, the lecture is already uploaded on YouTube. You can recall that we have framed some objectives and hypotheses, and with the help of linear correlation, partial correlation, and multiple correlation have solved the problem, rather have tested the hypothesis. Keeping those examples in mind, we shall discuss the objectives and hypothesis against this regression and prediction, of course in terms of linear regression equation and multiple regression equation. What were the objectives? From where we shall start, though we have already discussed about it. पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाए थे टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड इंटेलिजेंस. क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस यहाँ भी हम ले रहे हैं, एक प्रॉब्लम इसके बाद हम सोल्व करेंगे. दूसरा, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट. तीसरा, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट. 3 वेरिएबल. फिर लिया टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट बाय कंट्रोलिंग, यहाँ पार्शियल आउट, इंटेलिजेंस को पार्शियल आउट कर. टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, मतलब मल्टीपल कोरिलेशन. फिर हमने लिखा था कि टू फाइंड आउट हाउ फार द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स क्यूरियोसिटी एंड इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट्स टू द प्रेडिक्शन ऑफ स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट. यहाँ रोल शुरू हो जाता है रिग्रेशन एंड प्रेडिक्शन का, लेकिन ये रिग्रेशन प्रेडिक्शन का जो इंटरप्रिटेशन, दैट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, but we have also linear regression equation. Keeping in view the linear and the multiple regression equation, we shall test few hypotheses. But as we have read objectives, we have also framed the hypothesis and we have discussed in detail, that is in terms of linear, in terms of multiple, and in terms of partial. What was that? There is significant positive relationship between curiosity and intelligence. मतलब linear correlation, दो एट्रीब्यूट्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में. उसी टर्म में हाइपोथेसिस हमने बनाया था पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, ये भी लीनियर. देयर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड scholastic achievement, 2 variables, linear. There is significant positive relationship between curiosity and scholastic achievement, parceling out the effect of intelligence, partial correlation. There is significant positive relationship between curiosity and combined effect of intelligence and scholastic achievement, multiple correlation. And again, scholastic achievement of the students can be predicted by their curiosity and intelligence.
तो यहाँ भी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन का कंसेप्ट है। यहाँ हम लोगों ने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो पहले लिखा था, कहीं भी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल से हाइपोथेसिस नहीं बना है। अब हम लोग 3 हाइपोथेसिस बनाएंगे और ऑब्वियस है कि एक वेरिएबल को डिपेंडेंट मानते हुए हम लोग हाइपोथेसिस को फ्रेम करेंगे और तब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। हमने ये बताने का प्रयास किया पीछे जाकर, जिसको आप फिर देख सकते हैं, वहाँ हमने डिटेल से इसके बारे में बात की थी कि लीनियर रिलेशनशिप हम देख सकते हैं 2 वेरिएबल का, फिर एक का, यदि हम 3 वेरिएबल लेते हैं तो पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, फिर पार्शियल आउट कर सकते हैं, एक का इफेक्ट दूसरे को इंडिपेंडेंट देख सकते हैं, फिर 2 के जॉइंट इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं पहले पे, और फिर आगे जो इधर हम लोगों ने कुछ बात सीखी कि एक वेरिएबल की मदद से, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फिर दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक जो हमने चूज किया है एकमात्र डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और फिर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब हम यदि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए हम लोग लीनियर कोरिलेशन के टर्म में ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस लिख सकते हैं, पार्शियल के टर्म में ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस लिख सकते हैं, और मल्टीपल के टर्म में हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। अब हम लोग उसमें 2 चीज़ और जोड़ते हैं कि हम लोग लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के टर्म में हाइपोथेसिस लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, एंड मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन के टर्म में हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं। ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए था क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेजर पर्पस ऑफ computing these statistics. Now we shall show you the objectives which we have framed and the hypothesis. So you can see these objectives and hypothesis. See the objectives. You must note down. You can see the objectives. So this is the objectives. 2 objectives are related to linear regression equation, and the third one is related to multiple regression equation. In the same manner you can see the hypothesis which we have to test. The purpose of this objectives and hypothesis is to make you capable to write objectives as well as hypothesis, to use the regression prediction in the research, to test the hypothesis with the help of linear regression equation and again multiple linear equation. So let us write the hypothesis. In this part of lecture we discussed objective and hypothesis writing in terms of relationship. We went back linear correlation coefficient के टर्म में, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म में, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म में देखा, और यहाँ हमने ऐड किया कि हम लोग हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के टर्म में एंड मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन के टर्म। मतलब हम इन सारे एस्पेक्ट पे लीनियर कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, partial correlation and regression prediction
जिसमें दो, एक लीनियर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से, तो 5 तरह से हम लोग एटलीस्ट इस रिलेशनशिप को देख सकते हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन ऑर्डर टू imply it in the research. Now the last part we shall be taking a specific problem, and of course we have to frame regression equation for one independent and one dependent variable and two independent variable and one dependent variable, and whatsoever we have seen here as hypothesis 1, that is scholastic achievement of the students can be predicted by their curiosity. तो ये दो वेरिएबल x1 x2 यदि हम मान लें तो स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट को प्रिडिक्ट करना है व्हेन क्यूरियोसिटी इज यूज्ड. दूसरा हाइपोथेसिस कहता है कि स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड बाय देयर इंटेलिजेंस. सो विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस वी हैव टू प्रिडिक्ट द स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट. ये दोनों लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन से हो जाएगा. तीसरा पार्ट जो पहले वाले हाइपोथेसिस की जो सीरीज थी उसमें भी हम लोगों ने लिखा था, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय देयर क्यूरियोसिटी एंड इंटेलिजेंस टुगेदर. मतलब ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट को मेजर कर सकते हैं. और ऑब्वियस है कि यहाँ हमें मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन लिखना होगा. सो एक प्रॉब्लम की मदद से कैसे हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है हम लोग देखेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ लेक्चर वेयर वी हैव लर्न हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड हाउ टू राइट और टेस्ट hypothesis in terms of relationship. Now we shall learn to test the hypothesis by taking a specific problem. So this is all about this part of it.